Hello students. Now we are going to solve some numerical problem which are based on multiple choice question, in which we take numerical problem 3 multiple choice question की 3 numerical problem है MCQ 3. क्या है इस numerical problem में? There are two spherical conductors. There are two spherical conductors. Radius is given r1. This is spherical conductor A, and there is another spherical conductor. Radius of this conductor is r2. Clear? And these conductors have same potential at its surface. So V1 equal V and V2 equal V, and we have to find out ratio of their surface charge density sigma 1 sigma 2. ये चीजें आपको जो है वो गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना है. तो फिर सबसे पहली बात क्या आएगी कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ए. तो पोटेंशियल of electric potential of spherical conductor. Electric potential of spherical conductor, that is V1 equal KQ upon KQ1 upon R1. Suppose Q1 is charge on this surface and Q2 charge is on this surface. So we consider there is charge Q1 and there is charge Q2. Clear? Then we can write electric potential of spherical conductor A is V1 equal KQ1 upon R1. Now, but Q1 जो गिवन नहीं है, गिवन है आपको रेडियस. तो व्हाट विल बी Q1? Q1 कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल होता है चार्ज अपॉन में एरिया, Q अपॉन में एरिया. लेकिन फॉर फर्स्ट कंडक्टर वी कंसिडर हियर सिग्मा 1 and the total surface area of first spherical conductor is 4 pi r1 square. This is equation second. So we can write sigma 1 q1 4 pi epsilon naught r1 square. This is q1. So what is our value q1? Q1 is equal sigma 1 into 4 pi r1 square. This is equation second. By using first and second, what will be result? V1 equal KQ. V1 equal K into में what is value of Q1? Sigma 1 into 4 pi R1 square. ठीक है, किसकी वैल्यू पुट की? वैल्यू पुट की हमने जो है वो Q1 की, और डिवाइड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर. 4 पाई R डिवाइड बाई 4 पाई R1, सॉरी, डिवाइड बाई V1 K1 की वैल्यू पुट कर दी अपॉन R1. सो R1 इज कैंसिल आउट. So V1 equal K into sigma 1 into 4 pi R1. This is equation third. Now, similarly, you can write for second conductor. तो फिर मैं यहां लिख दूं similarly potential
electric potential of conductor B. Potential, similarly, electric potential of spherical conductor B. Conductor B. V2 equal के सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R1 की जगह कितना R2. दिस इज इक्वेशन 4. बट वी हैव टू गिवन V1 इक्वल V, V2 V. तो फिर 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, V1 अपॉन V2, this is equal to V upon V. Both conductors are of equal potential, so we can write V1 की जगह भी V, V2 की जगह भी V. तो what is V1? K sigma 1 into 4 pi R1 upon K into sigma 2 upon 4 pi R2. V से V कैंसिल, K से K कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. ठीक है, तो फिर ये आपके पास में 1 हो गए हैं. तो 1 इक्वल सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इंटू R1 अपॉन R2. बट यू हैव टू फाइंड आउट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2. तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल R2 अपॉन R1. R2 here and R1 below. Then this is ratio of their surface charge density, which is reciprocal, which is in reciprocal ratio of their radii. So this is your correct answer. Sigma 1 ratio sigma 2 equal R2 ratio R1. You cannot it. तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा. तो कैसे करना है पता लग गया. आपको रेडियस गिवन थी, दोनों का पोटेंशियल सेम गिवन था, हमें इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना था. पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ए निकाला, क्लियर. लेकिन Q1 हमें नहीं मालूम था, लेकिन Q1 की वैल्यू सिग्मा की टर्म में हमने ऐसे लिख ली. ये Q1 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास में V1 की वैल्यू इन सिग्मा की टर्म में आ जाती है. लेकिन इन सिमिलरली यू कैन राइट फॉर सेकंड कंडक्टर, देन V2 इक्वल K की जगह K, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 और 4 पाई R1 की जगह R2. नाउ we can divide 3 by 4 V1 upon V2, but V1 equal V and V2 equal V according to question. So there will be result 1 equal sigma 1 sigma 2 into R1 upon R2. So what will be ratio of sigma 1 sigma 2? Then you can replace it and R2 upon R1 will be ratio sigma 1 of sigma 1 and sigma 2. Clear? This is multiple choice question. क्वेश्चन जो है ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4. क्लियर? नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 5. So what is multiple question? Question 5, fifth MCQ. एक XY plane है. There is XY plane OX OY. This is origin. At origin, charge is situated Q equal 10 microcoulomb. 10 microcoulomb. Okay. We take a point A whose coordinate is A upon root 2, A upon root 2, and we take another point B whose coordinate is A0. Clear? Now the distance OA 4 point A
and this will be distance for A. This is A distance for point B. Coordinate is A0, then distance will be A. Now you have to find out potential difference between these points. So given charge Q equal 10 microcoulomb 10 into 10 raised to power minus 6 coulomb, and we have to find out VAB equal, find out करना है potential between these 2 points. So how can you find out potential difference between these points? Solution. So we can first find out potential of A due to point charge Q and potential of B due to point charge Q. ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं. What is formula of electric potential due to a point charge? Then general formula is KQ upon R. So potential of point A या potential A पे point पे क्या होगा? तो electric potential at point A due to charge Q at O, that is VA equal KQ upon R. So KQ upon R. So what is distance of OA? OE. KQ upon R means OA. ये डिस्टेंस मैं R ले सकता हूं. Now this is equal to KQ upon OE. You can find out distance of OA by using distance formula. Coordinate is A upon root 2 and A upon root 2, and coordinate of point O in origin is 0, 0. So there will be distance A upon root 2 minus 0 whole square plus A upon root 2 minus 0 whole square. ठीक है. Then VA equal KQ upon A upon root 2 whole square. It means A square upon 2. A square upon 2. This is equal to A square upon root 2 upon 2. So there will be KQ upon under root 2A square upon 2. 2 is cancelled out. So VA, potential of point A, KQ upon small a. This is equation first. Now what will be potential at B due to this point charge? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at B due to charge Q at O, VB equal, what is formula? KQ upon OV. What is distance OV? This is equal to A. Then VB equal KQ upon A. This is equal to 2. But VAB equal, ये फाइंड आउट करना है. VAB इक्वल VB माइनस VA और VA माइनस VB, VB माइनस VA. नंबर थर्ड, बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, द रिजल्ट विल बी VAB. दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन में A माइनस KQ अपॉन में A. दिस इज कैंसिल आउट. Then VAB equal 0. Clear? So
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी जीरो। कैसे निकाला? पहले हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, फिर हमने बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, दोनों पोटेंशियल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों सेम थे, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहां ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। यू कैन नोट इट, ये तुम इसे नोट कर सकते हो। क्लियर? दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिफ्थ। नाउ वी टेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7। सेवंथ MCQ। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, इस क्वेश्चन में है एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रेस्ट से जो है वो 70 वोल्ट से और 50 वोल्ट तक के पोटेंशियल पर जो है ले जाया जाता है। तो फिर एक अल्फा पार्टिकल आपको गिवन, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 2e। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे चार्ज e है, तो 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? वो 2e होगा। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e। नाउ पोटेंशियल जो है, एक पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, then V1 equal 70 volt and electric potential of second point, this is equal to 50 volt। तो किसी अल्फा पार्टिकल को हम इतने पोटेंशियल से और इतने पोटेंशियल तक लेके जाते हैं तो हमें कितना जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन, ठीक है, कितना होगा, बट दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो वर्क डन W इक्वल चार्ज इज 2e इन पोटेंशियल डिफरेंस इज 70 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट। चलिए, सो वी कैन राइट 22 या 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज वर्क डन? वर्क इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना था? 2e। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 70 माइनस 50, दैट इज 22 या 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। क्लियर? दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7। यू कैन नोट इट। नाउ वी टेक अनदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्या है उनके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9 MCQ। क्या कहता है क्वेश्चन कि दो हमारे पास में वही स्फेरिकल कंडक्टर है, radius of this is R1 and radius of this spherical conductor is R2. Clear? There are two spherical conductors having radius R1 and R2, and
इन पर जो पोटेंशियल है, इनके सेंटर पे कह दो चाहे इनकी सरफेस पे कह दो, वो पोटेंशियल जो V1 और जो V2 है उसका रेशियो क्या होगा। तो फिर V1 रेशियो V2 हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट V1 रेशियो V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दिस इज गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सपोज दिस इज सिग्मा 1 बट दिस इज इक्वल टू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा। तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। देयर आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, there are two spherical conductors having radius r1 and r2 and having same surface charge density, having same surface charge density sigma this is r2, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और इनके सेंटर पर जो है वो पोटेंशियल V1 और V2 का रेशियो क्या होगा और रेडियस आपको गिवन है। चलिए कैसे करेंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर ए, for spherical conductor A, this is equal to V1 KQ1 अपॉन में R1, यही सेंटर पे होगा इसके यहाँ पोटेंशियल और यही इसके सरफेस पे होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बट सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा, this is equal to charge, suppose q1 for this conductor and q2 for this conductor, q1 upon 4 pi r1 square, then charge will be q1 equal 4 pi r1 square sigma, this is equation second. Now you can put value of q1 in equation first by using first and second, then result will be V1 equal K Q1 4 pi R1 square sigma upon R1, R1 से R1 क्या हो गया? कैंसिल। तो व्हाट इज Q1? तो V1 इक्वल 4 पाई के, V1 इक्वल 4 पाई के सिग्मा और R1, दिस इज इक्वेशन third. Now you can write electric potential for conductor B in similar way. तो फिर similarly for conductor B, V2 equal 4 pi k sigma r2, this is equation 4, but you have to find out V1 ratio V2, then 3 is divided by 4, तो V1 upon V2 equal 4 pi k sigma r1 upon 4 pi k sigma r2, 4 pi k cancel out, sigma cancel out, so V1 upon V2 equal R1 upon R2, so we can write the ratio of V1 ratio V2 which is equal to R1 ratio R2. इसका मतलब उनके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो है वो इन स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस के रेशियो में होगा। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन है ये, जैसा कि हमने जो है वो फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। तो कितने क्वेश्चन हो चुके? ये क्वेश्चन हो चुका तुम्हारा 9 MCQ। अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं और वो क्वेश्चन है हमारे पास में 13, तो वो इंपॉर्टेंट भी कर लेना। तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप इसे नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्या है? 13 MCQ, ड्रॉपलेट्स है कुछ, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस इज n इक्वल 1000 जो है वो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, ठीक। तो रेडियस ऑफ these droplets या स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये छोटी छोटी पानी की या वाटर की ड्रॉपलेट्स है, तो रेडियस ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट this is equal to small r, clear? And electric potential of each small drop equal Vs, clear? Now इन 1000 ड्रॉपलेट्स को मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है, तो फिर हम ये कहें रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू VB, बट we have to find out कि VB जो है वो how many times of VS, कि जो बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो स्मॉल ड्रॉप का कितना टाइम्स होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1000 जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी उनमें प्रत्येक की जो रेडियस थी वो हमारे पास में स्मॉल r थी, प्रत्येक के ऊपर पोटेंशियल कितना था VS था, और जो है रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप कितना है मिलाने पर उनको R है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बिग ड्रॉप का वो VB है। लेकिन हम यहां पर कुछ कंसीडरेशन और कर लेते हैं, देखिए क्या। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप Vs इक्वल KQ अपॉन स्मॉल r, दिस इज जनरल फार्मूला KQ अपॉन r। तो व्हाट इज Q? Q चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, ये हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल ड्रॉप, क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी टेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, what is this? This is VB equal KQ upon capital R. So what is capital Q? Q charge on big drop, clear? This is equation second। तो हमने एक छोटी जो ड्रॉप थी उसके ऊपर पोटेंशियल निकाला, एक जो बड़ी ड्रॉप थी उसके ऊपर हमने पोटेंशियल निकाला। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, हमें चाहिए VB अपॉन VS। तो इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइड बाय फर्स्ट। कितना आ जाएगा देखिए, VB अपॉन VS इक्वल KQ अपॉन कैपिटल R इंटू कितना स्मॉल r चला जाएगा ऊपर, R अपॉन KQ, और R K इज कैंसिल आउट, और VB अपॉन VS इक्वल Q अपॉन स्मॉल q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में ये कंपैरिजन तब तक नहीं होगा जब तक इनके बीच में रिलेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी हो चुकी थी, थर्ड। दिस इज जो है वो दिस इज थर्ड 2 हो चुकी थी। तो अब हम कैसे इनके बीच में रिलेशन लाएं वो देखिएगा। हमें पता है बट
कैपिटल क्यू इक्वल 1000 स्मॉल क्यू। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी जो ड्रॉप हैं उन पे प्रत्येक पे चार्ज क्यू है, तो 1000 ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा टोटल? क्यू इक्वल 1000 क्यू। ये बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स। क्यों? जितनी बड़ी बूंद है उतना ही जो है वो छोटा, 1000 बूंद मिलकर के तो बड़ी को बना रही है। तो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इस ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। एक बड़ी ड्रॉप का कितना हुआ? इतना। 4/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, टेकिंग क्यूब रूट, देन r इक्वल विल बी 10r। दिस इज इक्वेशन 5। अब ये फोर्थ इक्वेशन है और ये फिफ्थ इक्वेशन है, इसकी वैल्यू हम इनकी जगह पुट कर दें तो फिर कौन कौन सी इक्वेशन से? 3, 4 एंड 5। देन व्हाट विल बी रिजल्ट? बताइए क्या आता है? VB अपॉन में VS इक्वल VS इक्वल Q अपॉन Q। Q की वैल्यू कितनी है? 1000 स्मॉल Q, 1000 स्मॉल Q अपॉन में Q, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इनटू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 10r। तो दिस इज इक्वल टू 10r। r से r क्या हो गया? कैंसिल। q से q क्या हो गया? कैंसिल। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो फिर VB इक्वल 100 टाइम्स ऑफ VS आ गया कि नहीं आ गया? यही हमें फाइंड आउट करना था कि बड़ी ड्रॉप के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, तो छोटी जो ड्रॉप थी उसके पोटेंशियल का 100 टाइम्स होगा। तो इसे आप जो है रिपीट कर सकते हैं और अब आगे वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।